Assalamu alaikum. This is me, Zara Irfan, a second year MBBS student at Sindh Medical College. I'm also an intern at Premed Marketing and Sales Medangal. I warm-heartedly welcome you all to our nationwide guidance webinar, Boards Without Burnout, जहां हमारे साथ मौजूद हैं सिंध, पंजाब, फेडरल, AKU और different boards से position holders. ना सिर्फ position holders, we have first position holders, toppers with us. So, guys, um, without wasting any more of our time, let us move on to our next slide. I think एग्जाम सब देते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पेपर को स्टैंड आउट करवाती हैं तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स आज हमें इस वेबिनार से मिलेंगी Like I introduced myself, my name is Zara Khan. I'm an MS2 at SMC. We have with us Varda Ashraf. She is an MS3 from CMS Multan. She's our moderator. Thank you so much, Varda Ashraf, for all your efforts. Now, let us move to our next slide and let me introduce our amazing speakers. Yeah, first we have with us, we have speakers from different boards, like I mentioned. All of them are exceptional. All of them are first position holders. They're toppers. तो सबसे पहले हमारे साथ हैं जैसे AKU board से Isha Zahid. She secured first position in AKU board. We have with us Fatma Siddiqui. Isha Zahid, she's also currently a first year MBBS student at AKU. We have with us Fatma Siddiqui. She's a first year medical student at DMC and she secured first position in Sindh Board's exams, BIEK. We have with us Huram Akram. She's also currently a med student at QAMC and she secured first position at Punjab board. Yeah. Okay. We have with us Aruba Asam. She secured first position in federal board. She's from KMU. Okay, guys, these prefix, ये जो जितने भी हमारे पास मैंने name use किए AKU, DMC, these are name of med school. For example, SMC is Sindh Medical College, AKU Aga Khan University, DMC is Dow Medical College. Yeah, someone asked in the chat box, right? Yeah. Thank you. Moving on to our next slide. Now that we're done with the introduction of the speakers, without wasting any more of our time, सबसे पहले हमें start कर देना चाहिए because I think हम सब इसी जिस चीज के लिए वेट के लिए आप सबके भी बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होंगे, so I think we should start with our webinar जो असल guidance है. Okay, guys, I would like to introduce our first speaker. First, we have with us Huram Akram. Like I mentioned before, she is the first position holder from Punjab board. And she will tell you ऐसी कौन सी tips and tricks हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने एग्जाम को इतना अच्छे से किया कि she secured first position, which is not something lightly. बहुत मुश्किल होता है. So over to you, Huram. Assalamu alaikum. Assalamualaikum everyone. I'm Huram Akram. I hope you all will be preparing smartly and diligently for your upcoming boards exam. Although not much time is left, I think the sooner you recognize your mistakes and weaknesses and overcome them, the better. I believe there's always a spot for improvement. So I would like to share with you some tips or tricks that helped me achieve first position in the whole Punjab province, and I hope that you could benefit from them as well. To begin with, I think a structured study plan provides the foundation to tackle difficult and hectic study routines. As it is said that the brain is an excellent slave but a poor master. So if you provide it with a structured plan, it can act upon it, it can act with a greater efficiency. So for this, you could use past papers to familiarize with the question patterns, and you should prioritize the high heat and difficult topics first. And also, I think that students most of the time tackle and suffer with questions that what to skip and what to do first. For this, I personally recommend the four square rule, which literally means dividing and studying the topics in two steps. First are the important ones. And in this, you have to first learn the topics that you haven't done first, and then the ones that you have done. Then comes the less important topics, and in this same as the previous one, you study the ones that have been learned from before, and then you do the topics that you have done earlier. So moving on, I think that we all agree that learning something in the previous time and then forgetting it in the long run can prove very stressing. For this, we must acquaint ourselves with positive and effective learning techniques, which literally means practices like active recall, which means
revising the topics and subjects with gaps of days or even weeks, as it retains and increases your memory power. Secondly, an important rule is that when you have learned a topic, you must teach yourself the same topic in the way that you are teaching a 5-year-old, as it is basically building simplicity in your brain, and that simplicity will lead you to mastery and will help you to tackle difficult and complex concepts. Moreover, I believe that to achieve outstanding academic results, healthy study and self-care balance is crucial, which may reinforce practices like following the Pomodoro technique, which means a 30 minutes focus session with a 5-minute break. Moreover, I highly recommend eating healthy diet and not sugary, high in fat, saturated diets, as they can make you lethargic. And if you want a productive study session, you must include more protein in your diet if you may. Moreover, you may sleep less throughout the whole year, focus on your studies and prioritize your learning, but you must sleep at least 6 to 8 hours on the night before the exam, as it relaxes your mind and increases your output in the exams, the more you are giving MCQs or SCQs in your exams. Moreover, I practiced 1 day off for myself. It may usually be Sunday, in which in this day you participate in extracurricular activities, and it keeps you motivated. In a nutshell, if you want an outstanding result in your academic and in your life, I think you must set clear goals and definite path. You must recognize what keeps you motivated to navigate the path through stress and exhaustion and make it your strength. That would be all from my side. I hope to see you all brightening bright stars in the years to come. Stay blessed. Thank you. Thank you so much, Huram. It was amazing advice, especially the part where you explain कि किस तरीके से अपने आप को ऐसे समझाओ जैसे आप छोटे बच्चों को समझा रहे हो. Like कोई भी टॉपिक हो उसको आप ऐसे समझाओ as if आप एक छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करो. I think I do this even in med school as well, and it helps a lot. So thank you so much, Huram, for the amazing advice. I'm sure हमारी audience को काफी कुछ सीखने को मिला होगा. Um, now let us move to our next slide. अच्छा guys, we'll take question and answers, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में होगा. अभी हम सारे स्पीकर्स की बात करेंगे. Okay guys, next we have with us AKU board से Isha Zahid. She's the first position holder from AKU board, and she also got into AKU. And guys, it's not easy to get into AKU, and let us now hear from Isha what were the tips and tricks जिसने उसको इतनी ज़्यादा help की that she secured first position in AKU board. So over to you, Isha. Assalamu alaikum. Hey everyone, Assalamualaikum. So I'll be talking about a couple of different things that you need to keep in mind, especially now that the boards are approaching. Just the number one thing is time management and what your schedule is actually. Okay, so you need to plan your day very realistically. Setting goals which are like unachievable and like बहुत सारी चीजें को एक साथ cater करना, it's not realistically possible. Instead, you should set छोटे छोटे गोल्स विच आर रादर अचीवेबल, सो दैट जब आप वो करो ना तो आपको खुद एक मोटिवेशन का बूस्ट मिले कि अच्छा मैंने ये कर लिया है तो अब मैं बाकी भी कर लूंगा. लेकिन अगर आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें साथ में करने की कोशिश करोगे तो आपको ये होगा कि ओ नो मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप फर्दर डीमोटिवेट हो जाओगे. एंड बिलीव मी, यू कैन नॉट अफोर्ड गेटिंग डीमोटिवेटेड, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ योर लाइफ. ठीक है. ऑल्सो यू नीड टू स्टे वेरी कंसिस्टेंट. ठीक है. इवन अगर आपको ऐसा हो रहा है कि ओ नो आई एम नॉट फीलिंग लाइक स्टडीइंग टुडे, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल. ठीक है. वी आर ह्यूमंस, वी आर मेंट टू गेट बर्न आउट एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन यू नीड टू स्टे वेरी कंसिस्टेंट. इवन अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, जस्ट थोड़ी सी हिम्मत करके इवन 1-2 घंटे के लिए भी अपनी बुक्स उठा लें, और बुक्स और ऐसी ऐसी सिचुएशन में जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द इजीएस्ट चैप्टर. बिकॉज अगर वो आपको आता होगा, वो आप करते जाते होगे, तो आपको लगेगा कि ओ यस ये तो मुझसे हो रहा है. फिर इवेंचुअली आपका फ्लो स्टेट रीच हो जाएगा और आप आगे भी सारी चीजें कर लोगे. सो यू नीड टू स्टे वेरी कंसिस्टेंट. ठीक है. जस्ट डोंट skip एक भी दिन. And the second thing is question practice. Oh my god, I cannot lay enough emphasis on this, because question practice is literally what makes life so much easier. ठीक है. Because number one thing, देखें जब आप questions करेंगे, you will eventually at one point get them right, और वो आपको
आपको इतना खुश कर देगा कि आप बोलोगे ओ शिट मुझे तो सब आता है। तो बिल्कुल आपने ऐसे करना है, you for that, but because they weren't enough, ठीक है, you don't have a lot of VB के past papers available, so then I shifted to A levels के past papers. I used to do MCQs. A levels के MCQs are actually really fun, ठीक है, वो आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन कर देते हैं कि आपको समझ आ जाता है एग्जामिनर चाह क्या रहा है। तो अगर आपको लगे कि ओ ये वाले चैप्टर में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आई है या इस चैप्टर के इनफ एमसीक्यूज अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट गो टू ए लेवल की वेबसाइट। देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल, दे आर कंप्लीटली फ्री, पीएमटी एंड पापा कैम्ब्रिज एंड स्टफ लाइक दैट। जस्ट गूगल पे सर्च करें और आपके पास बहुत सारे पास पेपर्स आ जाएंगे। जस्ट कीप डूइंग देम, पुट ऑन सॉन्ग्स बैकग्राउंड में, पुट ऑन कुरान की वर्सेस, whatever makes you feel comfortable, whatever makes you feel happy, put them on, do the questions, and just you will figure your way out. And the third thing is clearing concepts. देखें, you need to understand that एक ही VB is not the kind of board जिसमें you will get through rote learning से, you actually cannot do that. You need to make sure that your concepts are very 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 clear, ठीक है। सबसे पहले तो you need to cater those resources जो कि बोर्ड आपको खुद recommend करता है, which is पंजाब टेक्स्ट बुक, सिंध टेक्स्ट बुक, फेडरल टेक्स्ट बुक, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि ओ ये मुझे कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आ रहा है, move to A level की books. They have information written in such a nice manner कि आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि someone is actually explaining that stuff to you, ठीक है। तो देखिए, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बुक नहीं पढ़नी, ठीक है, चैट जीपीटी के पास जाए, उसको बोले मुझे ये समझा दें एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ 5-year-old किड। मैं तो लिखती थी प्लीज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ डोंकी। इट लिटरली एक्सप्लेन्स यू बिल्कुल स्क्रैच से आपको, और देयर इज नथिंग बेटर। नो कोई भी टीचर उसको बीट नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड यस, यूटिलाइज एज मेनी रिसोर्सेज एज यू वांट until वो पॉइंट ना आ जाए कि आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। स्टिक टू द काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो आपको लगे कि ये आपके लिए काम कर रही हैं। अगर आपको लगे कि ए लेवल की रिसोर्सेज आर दे आर टू ओवरवेलमिंग फॉर यू, जस्ट स्टॉप, डोंट यूज देम। स्टिक टू एक ही वीपी की रिसोर्सेज, स्टिक टू पंजाब टेक्स्ट बुक, बट लाइक प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स कि ओ माई गॉड ये बंदा तो यहाँ से ये पढ़ रहा है, ये इतना पढ़ रहा है, इतनी डिटेल में पढ़ रहा है, या वॉट एवर, ठीक है। जस्ट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद देम। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। क्या पता मैं अगर कोई चीज पढ़ने में 2 घंटे लगा रही हूँ, क्या पता आप वो आधे घंटे में पढ़ लो। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने वो सही तरह पढ़ी नहीं है, ठीक है। इट जस्ट शोज के every single person is different, every single person का जो पढ़ने का तरीका है that is different. Use techniques as Huriam mentioned कि if active recall work for you, मैं तो ऐसे ही करती थी। Either find yourself a study partner or just explain stuff as if imagine कर लें कि आपके सामने there's a class of students present, ठीक है, बस उनको explain करते रहें, yapping करते रहें। और yapping में अगर आप कहीं पे रुके ना कि आपको लगे कि ओ नहीं यहाँ पे तो ब्रेक आ रहा है, वहाँ फिर रिफ्लेक्ट करें अपने कॉन्सेप्ट्स को, वापस से चैट जीपीटी को बोलेंगे मुझे ये वाली चीज समझा दें एंड जस्ट गेट थ्रू इट। आई स्वेयर, बस आपने पैनिक नहीं करना है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। यू विल डेफिनेटली फिगर इट आउट। थैंक यू। Thank you so much, Isha. Okay, guys. मैं इस स्लाइड का वेट कर रही थी। Do you guys know about our website pmet.net.pk, our platform? Midangle के पास बहुत सारी resources हैं, and the best part is all of them are for free. You don't have to pay for anything. Our resources, everything, सारे PDFs वगैरह, it's completely free. We also have with us प्रीमेट ब्लॉग वगैरह, उसके अंदर जो जैसे हमारे पास आज हमने वेबिनार के फॉर्म में रखी है, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीजें वहां पर प्रीमेट ब्लॉग वाली वेबसाइट पे यू गेट टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। वहां पर यही सारी एडवाइसेस बट लाइक इन रिटन फॉर्म वहां पे मौजूद होती हैं। एंड वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों से गुजर चुके हैं, वो अपनी जर्नी के बारे में लिखते हैं, वो आपको बताते हैं किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को एस किया। So these are our resources that we have. Please do check them out. Moving on to our next slide. Yes, we also have subject-wise review guides. Guys, I remember मेरे MDCAT वाला time था, मैं जैसे like बाहर निकली, I was seeing कि बच्चे रिविजन के लिए हम like रिव्यू गाइड्स वगैरह यूज कर रहे थे, and those review guides
दे वर फ्रॉम premed.net.pk। वहां पर बेसिकली जो हमारी रिव्यू गाइड्स की खास बात है वो ये है कि एक ना सिर्फ ये फ्री है बल्कि इसके अंदर हर बोर्ड से रिलेटेड, इफ यू फ्रॉम AQU बोर्ड, इफ यू फ्रॉम सिंध बोर्ड, अगर फेडरल के बच्चे हो या कोई और बोर्ड के हो, KPK बोर्ड, बलोचिस्तान बोर्ड एज वेल, वहां पर उनकी टेक्स्ट बुक में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उन्होंने एक जगह पे लिखे हुए हैं। और जस्ट बिफोर द एमडीकैट आप उस लाइंस को रिव्यू कर सकते हो बिफोर द एमडीकैट, नॉट ओनली बिफोर लाइक रिविजन के तौर पे, यू कैन एक्चुअली यूज इट एज अ सोर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर जो भी आपकी बुक्स होती हैं लाइक STB वगैरह टेक्स्ट बुक की जगह पे आप ये यूज कर सकते हो। इसके अंदर हर बोर्ड के अंदर हर बोर्ड की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सब लिखे हुए होते हैं। वी ऑल्सो हैव विद अस यूट्यूब की वीडियोस एंड पॉडकास्ट वगैरह, समवन आस्क रिकॉर्डिंग वगैरह, सो वी ऑल्सो हैव इस तरह के लाइक रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह। वी ऑल्सो हैव टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली वीडियोस। वी हैव अ सीरीज जिसके अंदर 1 minute MDK टॉपिक्स रिवाइज करवाते हैं, सो डू चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। Moving on to our next slide. Yeah, we have with us our next speaker. She's from Sindh Board. I remember काफी सारे बच्चे majority के Sindh Board के थे. So guys, let me introduce our speaker. She is the first position holder from Sindh, Karachi Board. Fatma Siddiqui. She's currently a first year medical student at Dow Medical College as well. Assalamu alaikum, Fatma Siddiqui. Please do share your tips and tricks, especially Sindh Board से related, because Sindh Board का paperwork काफी relatively hard होता है as compared to different boards. So please do share how did you ace your exams इतने अच्छे से कि that you secured first position. Over to you, Fatma. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा सिद्दीकी एंड जैसा कि अभी सिंध बोर्ड के पेपर्स करीब हैं तो आई विल शेयर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई पर्सनली यूज्ड एंड दैट हेल्प मी एस माय एग्जाम्स एंड that helped me achieve position overall in board. So first of all I'll be sharing some basic studying techniques that I think के इससे आप जो है आपकी you can make the most of your studying time. First of all, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप अपने हर दिन के लिए सेट स्मॉल टारगेट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस टारगेट्स शुड बी अचीवेबल एंड शुड बी रियलिस्टिक। लाइक आप एट द एंड ऑफ द डे आप उनको जब अचीव मतलब उनको जब कंप्लीट कर लें सो उस वक्त आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिले और सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे इवन बेटर स्टडी करने की मोटिवेशन इससे आपको मिले। इसलिए आपको टारगेट्स अपने स्मॉल और अचीवेबल रखने चाहिए। हर दिन का आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या कौन सा टॉपिक कवर करना है, कितने टाइम में करना है। दूसरी बात ये है कि जब आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन एनी सिंगल टॉपिक, देन instead of jumping to the next topic, first ask yourself some questions about the topic कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो आपको इसका पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं। इफ यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस then well and good, but if not then इसका मतलब है कि आपने वो टॉपिक से कवर नहीं किया and you have to recover that topic again. इससे क्या होता है कि आप जो है जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में बैठता है एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जैसा कि अभी एग्जाम्स करीब आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक दे स्टार्ट स्टडीइंग फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 hours straight, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है। इंस्टेड यू शुड स्टडी फॉर अबाउट 1 or 1.5 hours एंड टेक गैप्स। इससे आप 1 hour में जो भी पढ़ते हैं वो आपके माइंड में रिटेन रहता है एंड अगेन यू कैन मेक मोस्ट ऑफ योर स्टडी टाइम बाय दिस। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कॉन्सेप्चुअल स्टडी। कुछ क्वेश्चंस में रट्टे लगाने पड़ते हैं लाइक इन PST, उर्दू, इंग्लिश इस सब में, बट जो हमारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट। अगर एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन में कोई ट्विस्टेड और टेंट फॉर्म का क्वेश्चन भी पूछ ले तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट की बेसिस पर वो आंसर अपना ओन वर्डिंग में ट्रांसफॉर्म आंसर शीट में कर सकेंगे। सही है, तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत जरूरी है। उसकी फायदा एक आपको ये भी है कि आपको नोट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपको 4-5 पेजेस के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं याद करने पड़ेंगे और आपका रिवीजन में टाइम भी कम लगेगा और आप एग्जाम में आसानी से अपनी वर्डिंग में अपना आंसर जो है प्रेजेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट थिंग जो कि इस वक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन सिंध मोड में ऑफ कोर्स आपका कंटेंट टॉप क्वालिटी वाला होना चाहिए, बट उससे भी मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है।
पेपर प्रेजेंटेशन में दो चीजें आती हैं, एक हेडिंग्स एंड दूसरी है डायग्राम्स। इन साइंस सब्जेक्ट ट्राई अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर दोस क्वेश्चंस जिसमें आप आसानी से डायग्राम बना सकें। लाइक इन बायोलॉजी आप किसी भी सेल की डायग्राम से ऑर्गेनेल की डायग्राम बना सकते हैं। सिमिलरली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आप आंसर इन अ फॉर्म ऑफ टेबल दे सकते हैं और आप फ्लो चार्ट्स जिसमें बना सकते हैं। इससे जो है आपके पेपर में एक अट्रैक्टिवनेस आती है एंड चेकर को मौका मिलता है आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वो दे। इसके अलावा जो हेडिंग्स है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिग पैराग्राफ्स यूज हेडिंग्स। इससे भी चेकर के लिए आसानी होती है टू एक्सट्रैक्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर आंसर। और ऑब्वियसली आप जितना चेकर के लिए आसानी करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। इसी तरह साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो बहुत ज्यादा ही प्रेजेंटेशन मैटर करती है। लेकिन इंग्लिश आपके क्वेश्चन आंसर में भी आप हर क्वेश्चन के साथ हेडिंग डालें। करेक्टर स्केच होता है हमारे पास, उसमें आप हर हेडिंग के साथ कोड डालें, जरूर कोड डालें, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और उससे भी आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। और ऐसे जो है जैसे उर्दू का मजमून है, इंग्लिश में ऐसे, इनमें ऑब्वियसली आप हेडिंग नहीं डाल सकते। तो मैं ऐसा करती थी कि अपने आंसर शीट में एसेज में पैराग्राफ बीच में लिखती थी और साइड्स में मेरे पास क्योंकि थोड़ा सा टाइम होता था तो एंड में साइड में लाइंस लगा देती थी। उसकी वजह से थोड़ी प्रेजेंटेशन एनहांस हो जाती थी। इफ यू गॉट इनफ टाइम टू डू दैट देन गो फॉर इट, बट अगेन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट लीव इट। इसके अलावा उर्दू में जैसे बाकी साइंस सब्जेक्ट्स में हेडिंग इंपॉर्टेंट है, उर्दू में शेर इंपॉर्टेंट है। हर सवाल में मैक्सिमम 2 to 3 शेर आपको लाजमी ऐड करने चाहिए। इससे भी आपके बहुत मार्क्स इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा पीएसटी में भी अगेन हेडिंग्स एंड इस्लामिक में भी अगेन हेडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड हेडिंग से नीचे का कंटेंट भी आपको इतना बहुत नोट से रिवाइज याद करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग से आप खुद लिख सकते हैं हेडिंग के नीचे का मटेरियल। ये हो गया प्रेजेंटेशन की बात। If I've missed anything, then you guys can surely ask in the chat box. I will try my best to answer. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत सारे बच्चों का इश्यू आता है, स्पेशली इन इंग्लिश एंड उर्दू के पेपर में। तो उसके लिए ऑल आई कैन से इज कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और राइटिंग स्पीड आपकी कैसे अच्छी हो सकती है? प्रैक्टिस से। आपको अभी भी आपके पास टाइम है तो स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर मॉक एग्जाम्स एंड पास्ट पेपर्स। लाइक सिंध में पास्ट पेपर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलमोस्ट लाइक एक ट्रेडिशन है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आप लोग पास्ट पेपर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको अटेम्प्ट करें। उसके जरिए आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आपको आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक और बात मैं पेपर अटेम्प्टिंग से रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि एमसीक्यूज में आपको पूरा ध्यान देना है। इसमें एमसीक्यूज में आपको इग्नोर नहीं करना उन्हें। एमसीक्यूज के लिए आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है ताकि वो एक आपके सॉलिड मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस हैं, ताकि आप जब एमसीक्यूज आपके कंप्लीटली हों सेफ साइड पे तो आपके बाकी थ्योरी में तो वैसे आपके मार्क्स जरा कम आने के चांसेस है, बट एमसीक्यूज में आपको इतना करना चाहिए कि आपके कंप्लीट मार्क्स उसमें आ जाए। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट की कि ये एक मैं बात कह सकती हूँ कि शुरू से ही आप अपनी राइटिंग स्पीड को तेज रखें। लाइक मैं ऐसा करती थी कि शुरू में पेपर आराम से करती थी, इसकी वजह से एंड में मुझे पैनिक होता था। तो आप ऐसा नहीं करें, शुरू से ही अपनी राइटिंग स्पीड तेज रखें ताकि एंड में थोड़ी आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस ना हो। और that's it, I guess. If I've missed anything, then you can ask. Or I wish you all best of luck and thank you for listening. Lafis. Lafis, thank you so much, Fatma. Especially जो paper presentation वाली tricks थी ना, मैंने personally सिंध बोर्ड से किया था, so I do know for myself कितना मुश्किल होता है, especially उर्दू और इंग्लिश में marks लेना. So thank you so much, Fatma. Thank you so much for the amazing tips and tricks. Again, related to past papers or time management वगैरह, paper presentation, it was very helpful. So moving on to our next slide or maybe our next speaker. You don't know, अभी हम slide देख के बताएंगे. Okay guys, like I said, हमारे पास बहुत सारे programs हैं. अब you guys are pre-meds, right? How can you be a part of something that brings change in our society अच्छे तरीके से as a pre-med student? Okay guys,
क्वेश्चन एंड आंसर लाइक आई सेड बिफोर हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे, अभी आप हमारी बात सुने। हमारे पास मौजूद है प्रीमेड प्रेसिडेंट्स प्रोग्राम स्पेशली फॉर प्रीमेड स्टूडेंट्स लाइक यू फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। वो स्टूडेंट्स जो एक्सेप्शनल होते हैं, नॉट ओनली इन स्टडीज, दे आर गुड एट स्पीकिंग, दे आर गुड विद कम्युनिकेटिंग विद पीपल। इस तरह के बच्चे दे कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अच्छा, इसके पर्क्स वगैरह क्या होते हैं? फर्स्ट थिंग, आपकी सीवी अच्छी होगी। लिंक्डइन के बारे में आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट, बट लिंक्डइन के ऊपर हम ये चीजें पोस्ट करते हैं, हमने क्या क्या एक्सपीरियंसेस हासिल किए दुनिया में, लाइक क्या क्या चीजें की हैं, वो सारी चीजें। उसके ऊपर आप अपना यूएसएमडी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट पोस्ट कर सकते हो कि आपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है, विच इज वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा आपके पास एक कम्युनिटी होती है, लाइक आई पर्सनली वाज अ पीपीपी माई सेल्फ, प्रीमेड प्रेसिडेंट। और बिफोर ज्वाइनिंग मेड स्कूल मैं ऑलरेडी काफी सारे सीनियर्स को जानती थी जो मेड स्कूल से ऑलरेडी थे। सो यू कैन गेट अ चांस टू गेट टू नो मेड स्टूडेंट्स, जो आपकी आपकी मेड स्कूल लाइफ में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरी बात, हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रीमेड ब्लॉग, लाइक आई शोड यू गाइस, उसके अंदर आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, ऑल दिस ये हम सब सिखाते भी हैं हमारे प्रीमेड प्रेसिडेंट्स को। वी ऑल्सो गिव देम वन ऑन वन गाइडेंस, हमारे ग्रुप्स हमेशा खुले होते हैं। इट इज बेसिकली द बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम यू कैन फाइंड। सो डू अप्लाई फॉर द प्रीमेड प्रेसिडेंट्स प्रोग्राम, और लिंक भी हम शेयर कर देंगे। वैसे यहाँ पर लिंक मौजूद है, यू कैन स्कैन द QR कोड, बट फिर भी हम ग्रुप पे लिंक जरूर शेयर करेंगे। Do apply. I want to see you guys in our team as a part of us. So I think that was all for PPP program. Moving on to our next speaker. Yeah, lastly we have Aruba Asim with us. I think federal वाले बच्चों ने काफी ज़्यादा wait किया है. So guys, let me introduce our first position holder from Federal Board, Aruba Asim. She's currently a first year medical student at KMU. So Aruba, please do share कौन सी ऐसी tips and tricks थी, क्या ऐसी चीजें थी जिसने आपकी help की कि आपकी माशाल्लाह से first position आई. So over to you, Aruba. Thank you so much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. This is me, Aruba Asim. Am I audible, Zara? Yes, you're audible. Okay, now I'll start. प्रिपरेशन में हम साइंस सब्जेक्ट्स को, आर्ट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट सेपरेट लेके चलेंगे, और मैं सबसे ज़्यादा जो है ना उर्दू और इंग्लिश पे फोकस करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उर्दू और इंग्लिश को बहुत से जो बच्चे हैं वो उसको छोड़ देते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मार्क्स गेनिंग के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो यहाँ पे फेडरल बोर्ड में उर्दू और इंग्लिश में मिलते हैं। अगर हम बाकी बोर्ड्स की बात करते हैं तो उर्दू और इंग्लिश में बहुत से मार्क्स डिडक्ट होते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ 96 और 98 भी उर्दू और इंग्लिश में मार्क्स आए हैं। तो वो किस लिए आते हैं? वो अगर आप इसको भी प्रॉपर टाइम दोगे तो तभी ये मार्क्स आ पाएंगे। तो उर्दू और इंग्लिश में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे पहले ग्रामर और सेकेंड पे पोएम्स। जितने भी MCQs होते हैं उर्दू और इंग्लिश में, या इसके अलावा उसके सब्जेक्टिव में भी मोस्टली जो मार्क्स होते हैं वो ग्रामर से आते हैं। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो अभी आप उसको अपने पास नोट डाउन करें। आपके पास अभी टाइम है, एग्जाम्स शुरू होने में 14 मई तक बहुत टाइम है, आप उनको निकालें और ChatGPT से या किसी भी सोर्स से आप उनके बारे में सर्च करके अपने पास नोट डाउन कर लें, उनकी अच्छी से तैयारी कर लें। सेकेंडली, जो उर्दू और इंग्लिश में दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है पोएम्स। पोएम्स के लिए मैंने जो दो पर्टिकुलर बुक्स फॉलो की थी वो KPK बोर्ड की थी और BTP बोर्ड की थी। मैंने इनकी जितनी भी पोएम्स थी वो तमाम की तमाम मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी, एक एक वर्ड का मीनिंग निकाला था। जिस लाइन की मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब से, AI सोर्स से, जहाँ से भी मुझे उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल सकती थी या मुझे लगता था कि ये उसकी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने वो निकाल के ग्रामर और पोएम्स को बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था। उर्दू इंग्लिश में मुझे लगता है कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। दूसरा, आपको लेटर्स के, एप्लीकेशंस के पैटर्न्स आने चाहिए, और एक राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो उर्दू और इंग्लिश का पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देन आ जाते हैं इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और अल कुरान। तो इस्लामियात और पाक स्टडीज़ का तो यह है कि आपको बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। इस्लामियात में आप कोशिश करें कि आप आयात और हदीस के बहुत से रेफरेंसेस याद करें। ऑल्दो पेजेस इतने नहीं होते जितने हमें बाकी दूसरे नॉर्मल बोर्ड्स में लिखना होता है, 5-5, 6-6 पेजेस। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साइड्स 3 साइड्स दी होती हैं, तो उसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा याद करें ताकि आप उन 3 पेजेस में बहुत ज़्यादा लिख सकें, ताकि नंबर्स उतने ही अच्छे आ सकें। अब जल्दी से हम साइंस सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है कि आपको रियलिस्टिक प्लानिंग बनानी है। सिलेबस बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब चैप्टर्स भी इंक्रीज़ हो चुके हैं क्योंकि नया करिकुलम आया। गाइड कर लें, आपने एंड तक अपना सारा रिवाइज करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है उसके हिसाब से अपनी रियलिस्टिक प्लानिंग बना, कोशिश
करें कि रात पूरा होने तक आप अपना गोल जो है उसको कंप्लीट कर सकें। देन हम चलेंगे, आई थिंक प्रिपरेशन के बारे में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अगर कुछ रह गया हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि ई शीट्स हैं तो ई शीट्स के लिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं वहीं से पहले साइंस सब्जेक्ट्स में करूँगी। मैं बायो के लिए क्या करती थी, डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप अब ये कहोगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में इतनी स्पेस नहीं होती कि डायग्राम्स बन सकें। तो मैं पहले से ही जिस क्वेश्चन में मुझे लगता था कि डायग्राम बन सकती है, मैं साइड पे एक बॉक्स बना के उसकी जगह छोड़ देती थी, और बाकी जितनी भी जगह बचती थी मैं वहाँ पे लिखने की और उसको पूरा करने की कोशिश करती थी। फिर जो मैंने साइड पे बॉक्स बनाया होता था, उसमें जितनी पॉसिबल हो सकती थी उतनी ही छोटी मैं डायग्राम बना के, यहाँ तक कि लेबलिंग भी पूरी आ जाती थी। तो आपको खुद ही अपनी प्लानिंग करनी होती है, आपको पहले से ही एक रोड मैप बनाना पड़ता है कि मैं अपना क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी कि मेरा क्वेश्चन भी पूरा आ जाए और डायग्राम भी पूरी आ जाए। अब बुक्स में बनी होगी, मैं सेकंड ईयर की एग्जांपल दे सकती हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन की एग्जांपल है पीसीआर, यस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब उसकी 3 स्टेप्स के अंदर डायग्राम है, मैंने वो तीनों स्टेप्स की डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन की स्पेस के अंदर पूरी की थी, और अपार्ट इसके कि मैंने उसके सारे के सारे स्टेप्स भी राइट डाउन किए थे। तो इतनी जगह होती है, सिर्फ आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये होता है कि जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि वो किसी फार्मूला से रिलेटेड है, आप उसमें फार्मूला इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो और उसको हाईलाइट करो किसी मार्कर्स के जरिए। अगर डेंसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको बोलोगे कि एज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, फिर आप उसको एक्सप्लेन करो टॉर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। फार्मूला जितना आप लिखोगे आपकी आंसर की वर्थ उतनी बढ़ेगी। तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द फार्मूलाज व्हाइल राइटिंग द आंसर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिर उर्दू और इंग्लिश का आपको होता है कि कोटेशंस की प्रॉब्लम आ जाती है, कि आप कहो कि मेरे से कोटेशंस इतनी याद नहीं होती। तो पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने खुद भी कोटेशंस इतनी याद नहीं की थी, जितनी हो सकती हैं उतनी करें। दूसरा आप ये करें कि जब आप लिख रहे हों तो आप लिखने के दौरान अगर आपको अपने ही लिखाए अपनी राइटिंग स्किल से कोई लाइन आपके दिमाग में इतनी अच्छी आ गई कि आपको लगता है कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसका पूरी जो टेंसेज हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है और बहुत परफेक्ट लाइन आपको लग रही है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इस राइटर ने कहा, ये इस राइटर ने कहा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप उस लाइन को मार्कर से लिख दें, उसके दोनों साइड्स के ऊपर अगर आप कोटेशन मार्क्स डालना चाहते हैं डालें, अदरवाइज सिर्फ मार्कर से लिखे एसेज। और इसके अलावा उर्दू में जो तशरीह होती है, उर्दू में मजमून होते हैं, आप ये तमाम जो है कर सकते हैं। कोटेशन याद करने की कोशिश करें, उर्दू में शेर याद करने की कोशिश करें, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो अपने पेपर को प्रेजेंट करने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी ही अच्छी लाइन्स को मार्कर्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हो। देन हम अगर उर्दू इंग्लिश की भी बात होगी, हाईलाइट्स बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आप अपने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट्स कर सकते हो। और याद रखना डायग्राम जहाँ पे बनती है वहाँ पे आपको डायग्राम हर सूरत ही बनानी है। फिर हम चलेंगे पास्ट पेपर्स की तरफ। पास्ट पेपर्स, अभी आपके पास टाइम है, आप जैसे जैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करते जाते हो, कोई एक सब्जेक्ट आपका पूरा प्रिपेयर हो जाता है, आप पास्ट पेपर्स निकालो, जो पिछले 3 4 5 साल के आप पास्ट पेपर्स करो। ये नहीं है कि मैं आपको ये कहूँगी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रिपीट होगा। मैंने नहीं देखा, मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 7 8 सालों तक भी पास्ट पेपर्स किए हैं, यहाँ तक कि सिलेबस भी पीछे चेंज हो गया था, फिर भी मैंने जहाँ तक सिलेबस चेंज होता है मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ तक करती रहूँ। इससे सिर्फ ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और रिपीट होना या ना होना आपकी किस्मत है। सिर्फ आपको ये पता चलता रहेगा कि मेरी तैयारी जो है वो किस हिसाब से हो रही है, क्या मैं जो पास्ट पेपर्स आए थे मैं उसके हिसाब, अगर वही मेरे पास आते हैं तो क्या मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसके अलावा आपको पास्ट पेपर से कोई ऐसा जितनी हेल्प नहीं मिलेगी, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज़रूरी होता है जब आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपेयर होने वाले होते हैं। लास्ट में मैं बिल्कुल आखिरी पॉइंट डिस्कस करूंगी रेफरेंस बुक्स का। तो रेफरेंस बुक्स यही है कि 3 4 हर सब्जेक्ट्स की बताएंगे, आप सिर्फ एक के ऊपर भी टिक जाओगे ना, सिवाय उर्दू इंग्लिश की, क्योंकि मैंने बोला कि पोइम्स के लिए आप बलूचिस्तान वाली फॉलो कर लो। या बलूचिस्तान में उर्दू और इंग्लिश का ये भी होता है कि आप जब उनके ग्रामर पॉइंट्स हर एक्सरसाइज के एंड पर, जैसे केपी के बोर्ड में या कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हो तो इंग्लिश और उर्दू की हर एक्सरसाइज के एंड पे ग्रामर लिखी हुई होती है, वो आप केपीके से भी करो बीटीबी से भी करो। अक्सर ऐसा होता है कि पूरी बीटीबी की लाइंस उन्होंने कॉपी करके दी थी। लाइक मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर का अपना एग्जाम दे रही थी तो बीटीबी से लाइन उन्होंने एग्जैक्ट कॉपी करके दी हुई थी। तो आप वो जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं वहाँ से कर सकते हो, पोइम्स कर सकते हो। इसके अलावा आप सिर्फ एक बुक के ऊपर भी टिक जाओगे तो आपके बहुत अच्छी पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो रेफरेंस बुक्स वही बात है कि आपको किसी दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि दूसरा बच्चा पंजाब की भी पढ़ रहा है, केपी की भी पढ़ रहा है, फेडरल की भी नेशनल बुक फाउंडेशन की भी पढ़ रहा है। आपको अपने आप को किसी भी दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है कि आप एक बुक भी अच्छे से अगर फॉलो कर लेते हो, उसके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग, अपने कॉन्सेप्ट उस पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं ना होता। हाँ, अगर कोई एक आधा टॉपिक है, अगर आपके एलोस के बोर्ड में शेयर किए हैं और एलोस में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक से दूसरी बुक से है तो आप उसको वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज एक ही बुक अगर आप करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब लास्ट पे आई थिंक मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी, मेरे पॉइंट सारे कवर हो चुके हैं कि पेपर का टाइम आ चुका है। तो अब आपको
मेहनत तो आप सब करोगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को एक एवरेज से एक टॉपर बनाना है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कमर भी ज़्यादा कसनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Aruba, for the amazing points. Honestly, each and everything was just perfect. I think जितना भी हम सब ने wait किया था federal का, it was worth it. Especially the last line कि when there's a will, there's a way. Thank you so much, Aruba. I बहुत अच्छी tips and tricks थी. I think even as a med student, इनमें से मैंने बहुत कुछ सीखा होगा. So guys, I hope आप सबने बहुत कुछ सीखा हो. Moving on to our next slide. Uh, like guys, wait a second. I'll tell you before moving on to our question and answers. Thank you so much. Our speakers are honestly the best. उन्होंने अपना best दिया. अब हम बात करते हैं free resources के बारे में. Like I mentioned, at keymed.net.tk by Medangle, we have everything for free. तो हमारे पास फ्री रिसोर्सेस में हमारे पास मौजूद हैं पीडीएफ्स वगैरह, जैसे मैंने आपको रिव्यू गाइड्स वगैरह बताई थी, उसके अंदर सारे बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं. दैट इज वेरी हेल्पफुल, स्पेशली अगर ऐसा होता है किसी और बोर्ड की टेक्स्ट बुक से आ जाता है, यू कांट अफोर्ड कि आप इतनी सारी बुक्स एक साथ पढ़ रहे हो. सो या, so just scan this QR code. You can access all the PDFs वगैरह, all the learning lists वगैरह for free. We also have our guidance group. वहाँ पर हम सभी मौजूद होते हैं और भी मैथ स्टूडेंट्स होते हैं. इसके अलावा आपके जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चन भेजो और वहाँ पे फिर आप सब आपस में डिस्कस कर लो. तो डू स्कैन ऑल, दोनों कोड जरूर स्कैन करना. Yeah, yes, you can take screenshot of this code. वैसे I was thinking कि आप लोग हमने ग्रुप पे ऐड किया, हम लोग वहीं पे ये सारी चीजें भी भेजते हैं ताकि सब इन सारी रिसोर्सेज को यूज कर सकें. एंड देयरफॉर completely free, कोई हिडन चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है. Yeah. Moving on to our next slide, which is basically question and answers. Okay guys, अब start करो. जो भी आप लोगों के questions थे, सब chat box में लिखते हैं. हमारे speakers यहीं पे मौजूद हैं. They'll answer all the questions, all the queries that you have. So 1, 2, 3, just start asking questions. The first question that we have, I think it's for Sunboard. Fatma, it's for you. What should be the ideal length for long question and answers? ओके, तो एक बात इम्पोर्टेंट है, याद रखिए कि किसी भी क्वेश्चन की लेंथ मैटर नहीं करती. टू बी ऑनेस्ट, आपका कंटेंट मैटर करता है. और जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बना के लिखेंगे, तो एक ये बात है कि वो वैसे ही लंबा हो जाएगा. तो वैसे 2 to 3 पेजेस काफ़ी होंगे, बट लेंथ पे आप इतना वर्ड नहीं करें. आपका कंटेंट सही पूरा होना चाहिए. जो भी सवाल में पूछा हो वो आपने कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है. और आप जो भी बुक में पूछा, जो भी बुक में जितना मेंशन किया हुआ है, उतना ही आप अपने आंसर्स में भी लिखना. तो आई थिंक दैट वुड बी डन. Okay, speakers, you guys can answer your questions one by one. बाकी सारे questions are mostly general, तो आप एक एक करके अपने सवाल के जवाब दे दो. अच्छा, there was this one more question जो board specific है for AQU board. Isha, please answer this question. How do you suggest when we start our MCAT की preparation, since we're going to have our board exams by the end of April, and considering that I've logged in for boards right now, should we start completely focusing on MCAT? Isha, over to you. Yeah, so these are like two completely different questions. For example, सबसे पहले I see this question के studying tips. तो देखिए, you need to focus a lot on your concepts. ठीक है, APB does not want you to write एक पेज के लंबे answers. Honestly, they don't even give you उतनी ज़्यादा space in the actual question paper. ठीक है, तो you need to make sure कि आपके concepts are really good, because अगर आपके concepts बहुत अच्छे होंगे तो definitely आप अपने concept को deliver करना भी आपको आता होगा. You will easily write about it in 1 or 2 lines. ठीक है, तो studying tips के लिए I would say कि go through the books, go through the SLOs. SLOs should be your best friend at this point, and like make sure कि आप कोई भी SLO को skip ना करें, and use active recall की techniques. सारे SLOs ChatGPT के होते हैं. Use AI in a really good way, because AI is really helpful. सारे SLOs से AI को उसको बोलो कि give me a checklist for these so that I can use it while active recall. ठीक है, use it. और फिर वापस से जब आप, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये आप पेपर से एक दिन पहले भी यूज कर सकते हैं in order to revise everything.
also there's another question कि how to understand organic reactions. So देखें you need to make flow chart for that. ठीक है, make a flow chart, जैसे alkanes ले लें, फिर उसके mind map बना लें और सारे reactions को दें. और एक और बात भी, I say this to all my juniors, के reactions को समझें, जैसे elimination, addition, substitution, इन सबका एक set pattern है. ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक न्यूट्रोफिलिक का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप डेफिनेटली आप उनको आइडेंटिफाई करके खुद अपना रास्ता निकाल लेंगे. और अगर आपको नहीं भी आता होगा ना, तो भी आप एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो सिक्योर कर ही लेंगे, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप डेफिनेटली आधे आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे. तो बस इसे समझें, दैट्स ऑल, लिटरली ऑल आई कैन से, बिकॉज अगर आपको समझ आता है तो आपको याद करने में कोई मसला ही नहीं होगा, बिकॉज देन आपको सिर्फ उनकी कंडीशंस याद करनी होंगी कि कौन से टेम्परेचर पे होता है क्या नहीं, जो कि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है भी नहीं की. सो या I think next we have federal के बहुत सारे questions. So do answer those questions. बहुत ज़्यादा questions हैं. Wait a second. It's like federal board, please, like I think it was Aruba, right? Aruba, can you please answer your questions? बहुत सारे हैं एक साथ. Okay. MCQs, AQU board. I think Isha, you should answer those questions अभी, because AQU वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं. yeah. अच्छा, तो एक और, I think Afan asked this कि how should we start MDCAT prep? I don't think I'm the right person to answer this, because मैं MDCAT ऐसे ही देने गई थी without any prep, because by that time I actually got मेरे AQU का decision, तो I knew कि मुझे सिर्फ पास करना है, तो मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट से ही I scored pretty well उससे. बाकी if you're talking about AQE की prep, तो देखिए the thing is कि ये सारी चीजें साथ होती रहेंगी. अगर आप बोर्ड्स के लिए सही तरह तैयारी कर लेंगे तो आपको इन एंट्री टेस्ट की इतनी तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट तो सारे पहले से ही क्लियर होंगे. ठीक है, तो डोंट एक्चुअली कंफ्यूज योरसेल्फ कि मैं ये करूँ या ये करूँ, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लिटरली द सेम थिंग्स. बोर्ड्स पहले आ रहे हैं, पहले बोर्ड्स पे फोकस करें, बाद में MDCAT की तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. MDCAT के लिए यू लिटरली हैव टू रोट लर्न थिंग्स. कुछ इतनी समझने की बात नहीं है, वो बैठ के एक हफ्ता बैठ के सब आप याद कर लेंगे, इसलिए डोंट टेक टेंशन उसके लिए. और MCQs के टिप्स, यस, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिटरली सब हो जाएगा. अब आप प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे पहले AQVB के पास पेपर्स डू देम, याद कर लें उनको. बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. अब ये ट्रेंड सेट हो गया है कि अब क्वेश्चंस इतने ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन यू विल गेट के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता किस तरीके से. और अगर आप कर लेते हैं AQ के सारे पास पेपर AQVB के, then move over to A level के MCQs. Solve as many MCQs as you want. मतलब इसकी कोई सेट लिमिट नहीं है कि आप 1 करें या आप 10 करें या आप 100 करें, जब तक दिल चाह रहे तब तक करें, बिकॉज दिस इज द एक्स्ट्रा माइल यू आर गोइंग फॉर. ठीक है, सबसे पहले AQEB के 5 पेपर्स करें और फिर A levels के MCQs करें. A levels की थ्योरी को टच करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट वेरी कंफ्यूज. ठीक है, और एक और आई सी दिस क्वेश्चन कि कैन वी लिसन टू फोकस बीट्स. देखिए, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू. हर बंदे का फोकस करने का तरीका वैरी करता है. आई कैन नॉट सिट एंड स्टडी एक जगह पे, तो आई वॉक एंड स्टडी. और मुझसे खामोशी में भी नहीं पढ़ा जाती, तो आई लिटरली पुट जो सबसे जो रॉक पंक म्यूजिक होता है, पुट दैट इन एंड देन आई स्टडी. हर किसी का अपना वैरी करता है. अगर आप फोकस बीट्स के साथ पढ़ सकते हैं तो जस्ट यूज देम. लिटरली नो वन केयर्स एज लॉन्ग एज यू आर स्टडीइंग. So we have more questions for Aruba. Aruba, if you're here with us, can you please answer your questions? या फिर कोई और speaker अभी answer कर दे if Aruba is not here. It's like there was this question कि how should they start preparing for the MDCAT, especially अगर वो AQU test. I think this question is for Isha again, because Isha made it to AKU. So like, do tell them how did you prepare for your AQU exam, Isha? Okay, so for AQ exam, all that really helped me were my concepts, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लिए थे for board exams. ठीक है, और दूसरी बात कि उसके लिए भी as much question practice, क्योंकि AQ test is literally checking your nerves. ठीक है, इतना कम टाइम होता है, there are a lot of questions. ठीक है, तो
all you need to do is you need to manage your time really well. And also, I see this question that you haven't done any extracurriculars and you don't have positions, so can you still apply? Thinking you still can apply. The thing is, no one really knows कि AQ वालों के दिमाग में क्या चलता है when they are actually selecting a particular student. I have seen people जिनकी कोई distinctions नहीं है, कोई positions नहीं है, they are there with me. तो किसी के volunteering में बहुत ज्यादा experience है, किसी का research में बहुत ज्यादा experience है. तो there's no set criteria कि अगर आप सारे boxes को tick कर रहे हैं तभी you can get into AQ. So just go for it. Just देखें, अगर आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा, वरना there are better things waiting for you. लेकिन do give it a chance, do give it a try if you really are that passionate about it. Speakers, you guys can start answering your questions जो भी आपके board specific हैं. Like I'll get in a touch with Aruba, जो federal board वाले questions हैं, तो she'll answer them. Aruba, are you here with us? यस आई एम हेयर. मैं अभी हाँ. करती हूँ. तो जो पहला क्वेश्चन है ना वो है मैनेज टाइम. ये थोड़ा सा ना मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये प्रेपरेशन में मैनेज टाइम करना है या पेपर जब आप लिख रहे हो तब करना है. सो आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ, लेकिन मैं फिर भी दोनों का बता देती हूँ. अब अगर आपने पेपर को प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो फिर अभी आपके पास टाइम है. और फेडरल बोर्ड की तो ये भी होता है कि एक एक पेपर के दरमियान भी आपको इतनी छुट्टियां मिल जाती हैं. अभी भी मैंने डेट शीट देखी थी तो लिटरली कुछ कुछ पेपर्स में तो 5-6 छुट्टियां थी. तो प्रेपरेशन के दौरान तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम मैनेज करने में या स्ट्रेस मैनेज करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आनी चाहिए. आप सिर्फ अपने सिलेबस को रियलिस्टिकली उसको डिवाइड करें और उसके बाद अपना पेपर उसी के हिसाब से अपना जो डेली गोल है वो कवर करें तो सिलेबस मैनेज हो जाएगा और इस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. टाइम मैनेज करना, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे खुद, हालांकि पेपर हमारा बाकी बोर्ड्स के मुकाबले में लिखना नहीं होता तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा पेपर छोटा है, लेकिन फिर भी मुझे खुद टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. तो फिर आप वो यही होता है कि आप अपने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम एलोकेट कर लें, अपनी वॉच लेके जाएं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम सेंटर्स ऐसे होते हैं वहाँ पे वॉल क्लॉक नहीं लगी होती है. अगर लगी भी होती है तो टाइम सही से आपको वो ख़राब होती है, चल नहीं रही होती. तो आप अपनी एक वॉच अपने साथ लेके जाएं और उसके हिसाब से अपना टाइम जो है वो डिवाइड करते रहें कि मैंने एक क्वेश्चन को 10 मिनट्स देने हैं, 12 मिनट्स देने हैं, 15 मिनट्स देने हैं, और कोशिश करें कि उसी टाइम एलोकेटेड टाइम में आपका वो क्वेश्चन खत्म हो जाए. तो इस तरीके से एंड तक कुछ ना कुछ आपका पेपर मैनेज हो जाता है. लेकिन फिर भी मैं खुद ये समझती हूँ कि आपका जितना एंड वाले घंटे के अंदर पेपर खत्म होता है ना वो स्टार्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मेड स्कूल में भी आके बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जो आखिरी आधा घंटा या घंटा होता है ना उसी में जाके मेरी स्पीड तेज होती है. शुरू में मैं कोशिश के बावजूद भी नहीं कर सकती. देन आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर MCQs स्पेशली फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. MCQs आपको कॉन्सेप्ट से आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो कि रोट बेस्ड हो, सिर्फ सारे के सारे सिंपली कॉन्सेप्ट्स होते हैं. अब कॉन्सेप्ट्स कैसे आएंगे, मैंने भी आपको बोला कि आपको सिर्फ एक बुक के साथ स्टिक करना है. आप क्या करो कि जब आप उसको रीड कर रहे हो तो एक एक लाइन को क्लियरली एनालाइज करो, उनके रिलेशंस बनाओ. अब यहाँ पे किसी ने पहले किसी से पूछा हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो आपको पूरा मतलब बता रही थी स्ट्रक्चर बेस्ड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कैसे करती थी, उससे उसके MCQs बहुत ईजी हो जाते हैं. आप सबसे पहले देखो कि स्टार्टिंग क्या था और उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है. सपोज हमारे पास अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड से स्टार्टिंग है, और एल्डिहाइड की अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल बनता है. अब देखो स्टार्टिंग में जो कार्बन थे क्या एंड पे भी कार्बन नंबर्स उतने ही थे. इसके हिसाब से आप कार्बन नंबर के कंपैरिजन से, और उसके अलावा जो आप उसमें कंडीशन, सारे कंडीशंस MCQs में लिटरली जरूरत भी नहीं होती. अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सारे ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के ही रिलेटेड MCQs आते हैं. तो आप स्टार्टिंग और एंड प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करो, कहीं पे कोई कार्बन का लॉस तो नहीं आ रहा. सिर्फ ये याद कर लो या आप थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करो कि एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा अल्कोहल ही बनेंगे. जितने स्टार्ट में कार्बन है एंड पे भी उतने ही कार्बन रहेंगे. तो इन दो कंपैरिजन से आप अपना आंसर उसमें से बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो. और इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पे था कि कंसेप्चुअल ऑफ फिजिकल फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द फिजिक केपी. नहीं, कंसेप्चुअली अगर आप ये समझते हो कि जो एक्सरसाइज में आपको दिए हुए कंसेप्चुअल और उससे आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. वहाँ से तो कोई तुक्के से क्वेश्चन आ जाएगा जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं, तो वो भी मुश्किल होते हैं. अक्सर जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो उन्होंने खुद ही, और वो थ्योरी से आपके कवर हो जाते हैं. आपको अगर ऐसा लगता है कि आपसे कंसेप्चुअल सॉल्व नहीं हो सकते, अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छी प्रिपेयर की है तो फिजिक्स के कंसेप्चुअल उनसे बहुत आसानी से कवर हो सकते हैं. लेकिन मैंने खुद KP के बुक के सारे प्रिपेयर किए थे, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई एक दो के अलावा कोई वहाँ से रिपीट भी हुआ. कंसेप्चुअल सारे खुद बनते हैं, तो आप थ्योरी को बहुत क्लियरली एनालाइज करो तो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी. सो व्हाट्स द बेस्ट वे टू प्रिपेयर अ बायो चैप्टर स्पेशली इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट से समझ में आ गई है ना कि आपने उसके वो पनीट स्केयर बनाने हैं, और उसके अलावा आपने उसमें मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो पनीट स्केयर बनाने वाले आते हैं आपके पास. उन्होंने अगर आपको एक
एक पेरेंट जीनोम दे दिया है और 2 पेरेंट जीनोम, और उसके बाद उन्होंने जितने भी वो उनके ऑफस्प्रिंग्स के जीनोम आपको फाइंड करने के कहे हैं, तो आप सिर्फ देखो कि पनेट स्केयर्स को वहाँ पे एनालाइज करो, जितने भी वहाँ पे बने हुए हैं उनको एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। या कोई बहुत अच्छा लेक्चर ले लो। अगर मैं आपको अपनी बताऊँ तो मैंने कभी भी किसी स्पेसिफिक लेक्चर साइट के ऊपर स्टिक करके लेक्चर नहीं लिया। मैं जब अपना पढ़ रही होती हूँ और अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो मैं यूट्यूब को स्क्रॉल करती हूँ और एक एक लेक्चर ऑन करती हूँ। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही सुनने से समझ में आ जाती है कि आपको इस पर्सन की समझ में आएगी या नहीं आएगी। अगर मैं आपको एक लेक्चर बता दूंगी, ज़रूरी है उसकी मुझे समझ में आती हो, आपको समझ में नहीं आती, तो आप क्या करो कि ऐसे किसी और के बताए हुए तरीके पे मत चलो। आप यूट्यूब आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपके पास जब भी टाइम मिलता है, फजूल स्क्रॉलिंग करने के बजाय आप यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करो और एक स्पेसिफिक चैनल फाइंड कर लो जिससे आपको अच्छे से समझ में आती है। इनहेरिटेंस की भी बहुत सी अच्छी वीडियोज़ प्रेजेंट हैं, आप उनसे बहुत अच्छा से वहाँ से समझ सकते हो। और देन आई थिंक दैट्स इट। मेरे शायद क्वेश्चन हो चुके हैं। आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग न्यू। अच्छा, हुरैम और फातिमा, इफ यू गाइस हैव एनीथिंग, कोई क्वेश्चन आपको नजर आया हो जिसका आंसर देना हो, so you guys are like more than welcome to answer those questions. Okay. हुरैम, do you have any question जो आप जिसका आपको आंसर देना हो, या कोई और स्पीकर? Is there anything, कोई क्वेश्चन रह गया हो जिसका आंसर देना हो? भी एक Okay. क्वेश्चन कोई यहाँ क्वेश्चन पे नहीं आया। है कोई। For practicing questions, do we practice them like for long question? मतलब अगर आपको आपकी राइटिंग स्पीड का मसला है, आपको राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है और आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करने में कोई मसला नहीं है, देन यू डोंट हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस। और इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होता है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे लिख कर। और इसके अलावा कुछ और मेरे ख्याल से राइटिंग करके उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। I think I saw a question for Huram. Huram, please answer your question. We have a lot of questions. Guys, don't worry, हमारे पास guidance groups हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हो. We're all there. उसका लिंक हम जरूर शेयर करेंगे हमारे वेबिनार के जो हमने ग्रुप बनाया था उस पे. It's like yeah. लास्ट मंथ में मेरी रूटीन ये थी कि ना, आप सबसे पहले तो ना आपने एक पेज के ऊपर आप लिख लें कि जो आपने ऐसी चीजें जो आपने कभी भी नहीं की लेकिन वो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सबसे पहले उन पे फोकस करें, क्योंकि आप उनको स्किप नहीं कर सकते। उनको स्किप करना ऐसे है कि आपने जानबूझ के अपने नंबर छोड़ दिए, ठीक है। तो आप अगर एक पेज पे अपनी चीजें लिख लेते हैं तो आपका जहन एक तरह से रिलैक्स हो जाता है और एक तरह आपको लगता है कि आपने 20% काम कर लिया है। तो आप सबसे पहले वो लिख लें, उसके बाद आप उनको ना डिवाइड कर लें कि आपका दिन कितने हैं और आप किस तरह उनको टैकल कर सकते हैं, आपको हर दिन क्या क्या करना है, ठीक है। फिर आप जब इस तरह अपने आप हर डेली के लिए आपको टास्क अपने आप को असाइन कर देते हैं ना और आप फिर इसको करते जाते हैं, तो इस तरह आपने ज्यादा सारे काम को जो है वो डिवाइड भी कर लिया और आप एट दी एंड देखेंगे कि आपने इनको जो है आपको सारा काम कंप्लीट भी हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ना आपने उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और आपको नहीं आते स्पेशली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस लाजमी करनी है डेली। मेरी ये रूटीन थी, ये थ्रू आउट में ये थी और लास्ट मंथ में इसकी स्पेशली थी। मैं रोज जो है उर्दू की इंग्लिश की प्रैक्टिस करती थी जिससे मेरी राइटिंग स्पीड और उनकी क्या कहते हैं उनकी नीटनेस मेंटेन रहती थी। आप एक दिन भी स्किप करेंगे आप 2 स्टेप्स बैकवर्ड चले जाएंगे। तो यही थी। Yeah, I think we have Isha के लिए questions and Aruba के लिए थोड़े से questions. Like plus. Gonna read them really quickly. The first question is I see SK how to do active revision just a day before exam. I'll tell you what I did. I used to wake up at 6, okay, and from 6 to 2, just talking about bio, I used to take जो PTB and I used to like flip through the pages or I used to एक्टिवली रिकॉल कि ओ इस पेज में ये लिखा हुआ है, इसमें ये बातें मुझे पता होनी चाहिए, ये मेरे ऐसे लोग का पार्ट है। तो from 6 to 2 I used to cover all the SLOs. I used to actively recall them and फिर I used to take a break and then from 4 PM to जब तक रात में मुझे नींद आए, वैसे मैं सो जाती थी 10 बजे तक because you need sleep, you really need it. मुझे तो बहुत आती है एग्जाम्स के दिनों में, ठीक है। तो what you are supposed to do, फिर आप सारे पास्ट पेपर्स को go through करें, do MCQs only because उससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो लाइक दिस डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि आपको पास्ट पेपर देखने हैं तो जस्ट पास्ट पेपर के भी अगर आप
एक्सटेंडेड मार्किंग क्वेश्चंस और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो देख लेंगे तो एक तरह से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो ही जाएगा। तो आइदर यू कैन गो थ्रू द बुक ऑल ओवर अगेन या यू कैन गो थ्रू द पास्ट पेपर, या अगर आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाह रहे हैं तो आप दोनों ही गो थ्रू कर लें। उसके लिए यू नीड टू हैव अ रियली गुड स्पीड लेके। ऑल्सो आई सी दिस क्वेश्चन कि एमडी कैट की तैयारी, यार अभी एमडी कैट की टेंशन नहीं लो, मतलब बहुत टाइम है, एमडी कैट तो डिले होता रहता है, मतलब इतना टाइम है, अभी नहीं लो टेंशन। और मतलब क्योंकि देखो अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो आप एमडी कैट के लिए भी पढ़ रहे हो ना साथ साथ, ऐसा तो नहीं है कि एमडी कैट का कोई अलग से सिलेबस आ जाएगा। तो और एमडी कैट इज वेरी इजी, आई डिड नॉट स्टडी फॉर इट, आई लिटरली डिड नॉट, ठीक है, लेकिन फिर भी आई पास विद लाइक रियली गुड मार्क्स। तो अभी नहीं टेंशन लो, अभी बोर्ड्स की टेंशन लो, वो ही टेंशन काफी है टू कीप यू ऑक्यूपाइड, ठीक है। बाकी बिकॉज आप खाली ये सोचो कि आपकी एमडी कैट की तैयारी आपके बोर्ड्स के साथ साथ हो रही है, इट्स नॉट समथिंग कोई अलग से सिलेबस आ जाएगा। तो रिलैक्स, अगर ज्यादा एफिशिएंट होना है तो मेट एंगल की वेबसाइट से एमसीक्यूज कर लिया करो रात में 1 घंटा बैठ के, और कुछ भी नहीं। ऑल्सो अच्छा देखिए, AQ टेस्ट की आपकी जो तैयारी हो रही होती है ना वो आपकी फर्स्ट ईयर से ही हो जाती है। जब आप कॉलेज में एंटर करते हो और आप सब पढ़ रहे होते हैं ना तब से ही आपकी AQ टेस्ट की तैयारी होना शुरू हो जाती है। लेकिन when did I officially started preparing for it, that was after my boards. प्रॉपर जो मैंने लॉक इन किया था that was बोर्ड्स खत्म हुए थे, मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया था और एंड देन आई स्टडीड AQ टेस्ट के लिए। लेकिन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फॉर इट एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर इट सेकंड ईयर से। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली है तो AQ टेस्ट आपका पास है, आई कैन टेल यू दैट, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बाकी जस्ट डू इट आफ्टर बोर्ड्स, अभी अभी सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ लो, सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ लो प्लीज। Okay, guys, I think we have a lot of questions अभी भी. So I would request our speakers, अगर आपको कोई question आंसर करना है, please keep it a bit short क्योंकि हमें webinar end में करना है. It's like there are so many questions, I don't know which one to choose from. जिसने भी अभी अच्छा सा question drop किया फिर हम उसका question लेंगे last and we'll go. एक्चुअली अभी It's मेरे like पास I आई थिंक think 4 क्वेश्चंस आए हैं फेडरल बोर्ड के, तो मैं पहले उनको जो है पहले एड्रेस कर लेती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अभी आया था कि कैंटब या एनबीएफ में कंफ्यूजन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मुझे एनबीएफ कैंटब के मुकाबले में बहुत अच्छी लगती है। कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली एक्सप्लेन किए होते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको रीड भी करोगे ना तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको उसके समझ में आ जाएंगे। कोई एक आधी चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, उसके लिए आपको या कोई AI सोर्स यूज़ करनी पड़ती है या यूट्यूब के लेक्चर्स की तरफ जाना पड़ता है। अदरवाइज जो स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है वो एनबीएफ है, कैंटब। मैंने एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत सी फिर डिफरेंट रेफरेंस बुक्स जो खोली थी, और फिर उसके अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एनबीएफ जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सेकेंडली यहाँ पे किसी ने पूछा था कि अगर ऐसा चैप्टर है जिसके अभी बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है और अगर उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है तो कैसे करें। तो सबसे पहले आप उसको खुद रीड करें। आप अगर आप रीड करने से, अगर मैं अपना बताऊं, मुझे 60 से 70% पहली रीड में ही समझ आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि आ जाएगी। फिर मैं उसको दूसरी रीड देती हूँ तो ऑलमोस्ट 70% मेरी चीज़ें रीड करने से क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ तक कि कॉन्सेप्ट भी अगर आप उसको क्लियरली एनालाइज करोगे ना तो बहुत से कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ बुक रीड करने से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर लिटरली मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप बुक रीड करने से अपने कॉन्सेप्ट सॉल्व ज़्यादा अच्छे से या कॉन्सेप्ट अपने बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं तो इससे आपकी एमसीक्यू yeah, बहुत thank you अच्छे so much, से हो Aruba. I जाते हैं। think we shall now end our webinar. So thank you so much for everyone for joining in. We're really sorry for the disruptions. So I do understand that you guys have a lot of questions for us. We will share the link of our WhatsApp group with all of you on our webinar wala group. So please rest assured, सबके questions के answers होंगे. All the speakers will be there. They will be answering your questions. So don't worry.